جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سامعین و سامعات، انشاءاللہ العظیم آج آپ کے سامنے 26ویں پارے کا خلاصہ جو ہے پیش کیا جائے گا۔ اس 26ویں پارے میں کل جو ہے 6 صورتیں ہیں، جس میں الاحقاب ہے، محمد ہے، فتح ہے، الحجرات ہے، قاف ہے اور سورہ زاریات ہے۔ یہ سورہ جو ہے سورہ الاحقاب، جہاں سے ہم اس پارے کا آغاز ہوتا ہے، یہ اس گروپ کی آخری مکی سورہ ہے، جو 5ویں گروپ پر میں نے اس سے پہلے کے خلاصے میں ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ احقاب کے بعد 3 صورتیں مدنی ہیں اس گروپ میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی وعدوں کو اور جو وعیدیں جو پیچھے بیان ہوئی ہیں مکی صورتوں میں، اسی کی تکمیل ہے۔ اور اس میں مخالفین کو نہایت ہی واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے آگاہ کر دیا ہے کہ قرآن جس روز قیامت سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے، وہ بالکل ایک حتمی چیز ہے، ایک شدنی امر ہے، اور شرک و شفاعت کے بل پر جو تم اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا یا مفتری قرار دے رہے ہو، تو یاد رکھو تمہارے یہ جھوٹے اوہام کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، عنقریب جو ہے اس کا انجام تم دیکھو گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ان مخالفین کی ذرہ برابر آپ پرواہ نہ کریں، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے کہ آپ کتاب کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کتاب کو، اس کے اوپر ایمان وہی لوگ لائیں گے جن کے اندر میں فطرت سلیمہ زندہ ہے۔ تو یہ جو ہے اس گروپ کی جو آیات ہیں، اس گروپ پر ایک اجمالی تبصرہ اور سورہ احقاف پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ 6 صورتیں ہیں اس لیے میں آیت بآیت جو ہے آج نہیں کر پاؤں گا، شاید وقت اتنا نہیں رہے گا، تو میں رکوع کے لحاظ سے انشاءاللہ آج اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دیکھیں سورہ احقاف کا نام جو ہے، احقاف جو ہے یہ ریتیلے میدان کو کہتے ہیں۔ قوم عاد کی جو جگہ تھی اس کا بھی یہی نام ہے۔ تو اس سورہ کی جو 21ویں آیت ہے اس سے اس کا نام ماخوذ ہے، اور اس سورہ میں 35 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں، اور زمان نزول جو ہے اس کا مکی ہے۔ مکی زندگی میں سورہ جاسیہ جو ہے اس کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اس کے جو مضامین ہیں، اس میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا اعلان ہے، پھر ساتھ ساتھ جو ہے جو شرک کا مختلف انداز سے نہایت ٹھوس بنیادوں پر اس کو رد کیا گیا ہے، اس کی تردید میں جو ہے عقلی دلیلیں بھی دی گئی ہے، اور تاریخ کی دلائل بھی اس میں ہیں۔ جیسے مشرکین خدا کے ساتھ جن مخلوقات کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ وہ نہایت بے بس ہیں، اور ان کی لاچاری اور بے بسی کو خود مشرکین جانتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو فریب میں ڈالے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا اس میں ذکر کیا گیا کہ آج جیسی زبردست قوم جب عذاب آیا تو ان کے معبود باطل جو تھے وہ ان کے کوئی کام نہیں آ سکے۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہے توحید کی اس میں تعلیم دی گئی ہے، اور شرک کی تردید کے علاوہ اس میں اس سورہ میں بعض معاشرتی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ہر حال میں، معروف میں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر اسی میں ہم کو رضاعت جو یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ بتلائی گئی ہے کہ 2.5 سال ہے۔ احناف کے ہاں احناف کے ہاں 2.5 سال ہے، باقی ائمہ اس کو 2 سال کرتے ہیں۔ باقی وہ جو ہے اس کو حمل کا پیریڈ اس میں شمار کرتے ہیں، جو 30 مہینے کی چیز ذکر کی ہوئے۔ بہرحال وہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ساتھ ہی جو ہے اس میں ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح کی بشارت بھی دی گئی ہے جو توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدم ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع کے لحاظ سے تو 1 سے لے کے 10 آیت تک جو پہلا رکوع ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحمید، اس میں جو ہے اس رکوع میں پہلے یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ قرآن حکیم اس ہستی کا کلام ہے جو آسمان و زمین کا تن تنہا خالق ہے، مگر جو آخرت کے منکر اس سے اعراض کرتے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ یہ دنیا کوئی کھیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک دن اس کی مدت پوری ہوگی، اور جو اس کا نتیجہ انجام ہوگا وہ ضرور ظاہر ہوگا۔ پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کفار و مشرکین سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کو تم پکارتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ کہ وہ کون صاحب ہیں۔ ایک اللہ نے سوالیہ انداز میں
کہ جنہوں نے زمین اور اس زمینی مخلوقات میں سے کوئی چیز پیدا کر لی ہو، یا یہ کہ انہوں نے آسمان کی بناوٹ میں خدا کا ہاتھ بٹایا ہو، تو اس بات کے ثبوت میں کسی پہلی کتاب یا کوئی جو تمہارے پاس علمی روایت ہے اس کو پیش کرو۔ ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ اس کا اس طرح سوالیہ یہ کر کے ان ایک طریقے سے جو ہے قیامت میں یہ بتلایا گیا کہ جو یہ مشرکین جو ہیں جو شفا ہیں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وہ ان سے اظہار بیداری کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ قرآن کے دلائل کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گڑھا ہے تو جو یعنی یہ کہا گیا کہ تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے، میں کوئی نیا پیغام لے کر آنے والا کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، میں تو صرف وہی الہی کلام الہی پیش کر رہا ہوں جو اس سے پہلے جو ہے انبیاء لے کر آتے رہے، اور جس پر جو ہے خاص طور سے ان کے ہاں یہودیوں سے خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارے یہاں بعد میں آپ دیکھیں عبداللہ بن سلام یہودیوں سے، عیسائیوں میں سے حضرت عدی بن حاتم وغیرہ یا نجاشی، یہ سب ایمان لائے۔ تو یہ جو ہے پہلے رکوع میں، پھر اس کے بعد سامعین سامعات دوسرا رکوع جو ہے 21 سے 20 تک، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو، اس میں اس رکوع میں پہلے یہ بتایا گیا کہ کفار جو اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ مسلمان اس میں ہم سے پہل نہ کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت نہیں حاصل کی تو وہ تو یہی کہیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ جب انگور نہیں ملا تو وہ کھٹے ہیں، تو یہ جو ہے اسی طرح کا جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور دراصل یہ کافروں کا گھمنڈ ہے، اور کیونکہ وہ ہر قسم کی خوبیاں جو ہے سوچتے ہیں کہ یہ تو صرف ہمارے لیے ہے۔ آج بھی ایسے دنیا میں مفسدین ہیں جو ہر چیز سوچتے ہیں کہ سب چیز جو ہے یعنی ثقافت کلچر سب ہمارے پاس ہے، اور جو دوسری اقوام یا خاص طور سے مسلمان ہیں وہ تو جو ہے ایول ہیں اور یہ ہیں کیا کیا آپ سنتے ہوں گے۔ بہرحال جو قرآن اس میں یہ اس چیز کو بھی بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو چیز نازل ہوئی تھی اسی کو کہاں تم لوگوں نے تسلیم کر لیا، جو تم جو ہے محمد پر یہ جو ہے یا قرآن سے متعلق یہ جو ہے یہ کر رہے ہو، جبکہ قرآن تو خود تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ اس طرح یہ اور قرآن جو ہے پچھلے تمام انبیاء پر ایمان لانے کی ہمیں دعوت دیتی ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر سب کی۔ پھر اس میں جو ہے خاص طور سے جو لوگ جو ہے ایمان پر ثابت قدم تھے ان کو بشارت دی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو کہا کہ تمام مخالفتوں کے باوجود جو حق پر قائم رہیں گے کل قیامت میں انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ پھر اس میں جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ جو نیک اور شریف بچے ہوتے ہیں وہ پختہ عمر تک پہنچ جانے کے بعد بھی وہ اللہ سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو تمام نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ان نعمتوں کا بھی شکر گزار ہوں جو آپ نے میرے ماں باپ کی شکل میں مجھے دی ہے، اور آپ مجھے توفیق دے کہ میں ان کے ساتھ نیکی کر سکوں۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس میں جو ہے جو اس کے برعکس جو انتہائی بد نصیب لوگ ہیں جن کے والدین تو نیک ہوتے ہیں لیکن ان کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں ان کی گمراہیوں کی وجہ سے، تو ایسے ان پر جو ہے افسوس کیا گیا ہے، اور یہ چیز کہا گیا کہ یہ دراصل آخرت کے منکر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اخلاقی زوال جو ہے یا اخلاقی کردار اسی طرح کا ہوتا ہے۔ پھر سامعین و سامعات اگلا جو رکوع ہے 21 سے لے کے 26 تک، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اس میں اس رکوع میں قوم عاد کی نافرمانیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور آپ بتایا گیا کہ آپ انہیں جو ہے قوم ہود علیہ السلام کا ذکر سنائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ جس طرح انہوں نے اپنی قوم کو جھٹلایا اور انکار و شرکتی کی پر جب اڑے رہے تو خدائی عذاب کے وہ مستحق ہوئے۔ جب وہ بادل آیا تو وہ خوش ہوئے کہ واہ اب تو یہ خوب برسے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ عذاب تھا، اور اتنی زبردست آندھی تھی جس نے اس قوم کو تہس نہس کر دیا۔ حالانکہ بتایا گیا کہ یہ منکرین مادی جو وسائل تھے اس میں ان سے کہیں زیادہ تھے، تو اس کے باوجود جو ان کی قوت و حشمت تھی وہ ان کے کوئی کام نہیں آئے، تو ان کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے جو منکرین قرآن ہیں، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔
तो इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े किया। फिर आखिरी जो रुकू है वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा 27 से 35 तक, इस रुकू में पहले ये फरमाया गया कि आप इन्हें समझाएं, देखो तुम्हारे इर्द गिर्द जितनी आबादियां हैं खुदा की नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने उन्हें हलाक किया। तो उन लोगों को बार बार जो है समझाया जा रहा है कि हमारी तरफ जो है यानी पिछले रसूलों को ने समझाया कि हमारी तरफ पलटो, लेकिन उन्होंने अपने मादी वसाइल पर भरोसा करते हुए उनका मजाक उड़ाया और नतीजा ये हुआ कि अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हुए। फिर एक इसी में जो है आखिर में जिन्नात का वाक़या है कि एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से तिलावत कुरान को उन्होंने सुना। सुनने के बाद जो है वो कौम जो है ईमान ले आई, और फिर ईमान ही नहीं लाई बल्कि दाई और मुबल्लिग बनकर अपनी कौम में गए और उन्होंने इसकी पूरी खबर दी और कहा कि हम तो इस पर ईमान लाए, तुम लोग भी ईमान लाओ। तो यहाँ गौर करने की बात यह है कि जिन्नात जिन्होंने सिर्फ एक बार कुरान को सुना और वो न सिर्फ ये कि ईमान लाए बल्कि दूसरों को भी ईमान लाने की दावत दे रहे हैं, तो ए मुनकिरीन कुरान, तुम जो है सोचो, बार बार कुरान जो है ये नबी तुम्हारे सामने कुरान को पेश कर रहा है लेकिन तुम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और सबात कदमी की दावत दी गई है कि आप जो है जैसे पिछले अम्बिया जो है पूरे सब्र के साथ जो है इस दावती मिशन को जारी रखा उन्होंने, आप भी इसी तरह इस मिशन को जारी रखें। सामिन व सामियात, इसके बाद हम जो है देखते हैं सूरह मोहम्मद है। सूरह मोहम्मद जो है ये इसका नाम जो है इस सूरह की जो दूसरी आयत है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उसी से इसका नाम है मोहम्मद है। इसमें 38 आयतें हैं, 4 रुकू है। ये ज़माने नुज़ूल के लिहाज से मदनी सूरह है और मदीना में बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में ये सूरह नाजिल हुई। इसके जो मज़ामीन है इसमें मुहाजिरीन को तसल्ली दी गई है और उनकी मुखलिसाना जो जो जज्बा हिजरत है उसकी बारगाह इलाही में कबूलियत, उसकी बशारत अल्लाह ने दी है कि अल्लाह ने इसे कबूल किया। इस्लाम की राह में जो है कहा गया कि जो लोग इस्लाम की राह से रोकते हैं, दीन इलाही को निस्त नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन दुश्मनाने हक से जो है जिहाद और क़ताल करने की इजाज़त दी गई है। फिर इसके अलावा जिहाद और क़ताल से मुताल्लिक़ कुछ अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए हैं। मुनाफ़िकीन और उनकी निशान दवानियाँ जो थीं उसकी निशानदेही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है। फिर इस सूरह में जो है वो अताअत इलाही और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तिबा उसकी ताकीद की गई है कि तुम हर हाल में इस नबी की इत्तिबा करो। साथ साथ जो है बुख्ल की मजम्मत इसमें हुई है, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है। फिर साथ साथ जो है इसमें दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाया है कि ये तो दुनियावी ज़िंदगी एक आजमाइश है, कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देकर आजमाता है, कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छीन कर आजमाता है। फिर कुफ़ार और मुशरिकीन की दुनिया और आखिरत में नामुरादियों की कुछ पेशन गोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है और मुसलमानों को जो उनका अंजाम होगा कामयाबी, उसकी बशारत दी गई है। और इस कामयाबी के सिलसिले में जो है फ़तह मक्का की तरफ भी इसमें इशारा मिलता है। अब आइए देखते हैं सामिन व सामियात 1 से लेकर 11 तक जो पहला रुकू है, अल्लज़ीन कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाह। इस रुकू में पहले ये बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जो लोग कुफ्र की रविश इख्तियार किए हुए हैं और जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की राह से उनको रोकते हैं, उनके सारे अमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बर्बाद कर देगा। इसके बरक्स जो लोग ईमान वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नादिल हुई उस पर ईमान लाते हैं, उसके मुताबिक अमल साले करते हैं, उनके गुनाहों को इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह माफ़ कर देगा और उनकी हालत को बेहतर करेगा। और फिर इसका जो ये चीज़ भी बतलाई गई है कि मुनकिरीन हक जो है वो बातिल की पैरवी और मोमिनीन ने जो हक की इत्तिबा की है उसकी इल्लत क्या है, सबब क्या है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें उजागर किया है। फिर हम देखते हैं कि इसमें मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि मैदान जिहाद में खूब यानी हौसले के साथ, खुरेज़ी के साथ काफिरों की कमर तोड़ दो। और साथ साथ फिर इसमें कैदियों से मुताल्लिक़ कुछ अल्लाह ने अहकामात दिए हैं। जिहाद का मकसद बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बतलाने की कोशिश की है कि कुफ़ार से अगर सिर्फ निमटना होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ़ी था, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें ये मौका दिया, तुमसे ये काम करा रहा है, इससे तुम्हारी आजमाइश मकसूद है। वो अपनी राह में जान देने वालों को दुनिया और आखिरत में इनामात से नवाजना चाहता है। तो हमारे सामने आज भी ये मकसद वादे होना चाहिए कि अल्लाह, जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो लोग ये हो रहे हैं, तो ये दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों क्यों ये जो है मकसद हम सामने रखें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सामिन सामियात हम देखते हैं कि दूसरा जो रुकू है इसमें, इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस
तो इसमें 12 से लेकर 19 तक इस रुकू में अहले ईमान की जो उखरवी कामरानी है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान करते हुए कहा है कि जो कुफ्र की रविश इख्तियार किए हुए हैं वो दुनिया की जो चंद रोज़ा ज़िंदगी है इसमें मज़े लूट लें। वो महज दुनियावी लज्जत की बिना पर आज जो है उनको जानवरों से मिसाल दी है कि जानवरों की तरह जो खाना पीना जिनका मकसद होता है, बगैर मकसद की जो ज़िंदगी होती है वो ज़िंदगी गोया गुजार रहे हैं, उनका ठिकाना बहरहाल जहन्नम है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाया है कि जिन लोगों पर हलाकत आई इससे पहले वो अहले मक्का से ज़्यादा ताकतवर थे, उनकी मदद को कोई भी उनका साथी जिनको वो पुकारते थे नहीं आया। तो मतलब यहाँ पर यह है कि गुज़श्ता ऐसे ताकतवरों का सफाया भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया। तो ये जो अहले मक्का है इनकी क्या हैसियत है। तो इसमें एक तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तेह मक्का की बशारत दे दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा कि दीन जो है ये तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसूल बनाए हैं उन उसूल की जो पैरवी करेगा यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी उन्हें नवाजेगा। फिर इसमें हमको कुछ जन्नत की नेमतों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है कि जन्नत में कैसे मशरूबात होंगे, कैसे दूध होंगे, कैसे शहद होंगे। इसके बरखिलाफ़ कुफ़ार जो है वो दोज़ख में कैसे खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा, उनकी अतड़ियाँ उससे तबाह होंगी। इस सब का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। फिर सामीन और सामियात हम देखते हैं कि इसमें ये बात भी समझाई गई है कि जो ये नबी जो है हक़ की दावत दे रहा है उस पर ये ज़र्रा बराबर कान नहीं धर रहे हैं। और फिर ये भी बात मुनाफिकीन का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ जिक्र किया है कि मुनाफिकीन का जो उस वक्त शेवा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते सब कुछ सुनते थे, लेकिन जब बाहर जाते थे तो मजाक उड़ाते थे और कहते थे मोहम्मद ने अभी क्या क्या बात कही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि ये शायद जो है क़यामत के मुंतज़िर हैं, ए नबी पाक आप इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। फिर रुकू नंबर 3 में देखते हैं हम यक़ूलुल्लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरा। तो इस रुकू में बताया गया कि ईमान वालों की ख्वाहिश थी कि अल्लाह की तरफ से जो है कोई सूरत नाजिल होती फिर कि जिसमें हमको जिहाद का हुक्म था। ख़ास तौर से उस वक्त जो जो मुनाफिकीन थे वो इस तरह की बातें करते कि हाँ क्यों नहीं अल्लाह इजाज़त दे रहा है। तो जब सूरत नाजिल हो गई, क़िताल का हुक्म हो गया उसमें, तो इन मुनाफिकीन पर मौत की गशी तारी होने लगी। तो वैसे तो ये फरमाबरदारी करने वाले नहीं थे, अल्लाह ताला जानता था, लेकिन अब जब जिहाद का हुक्म आ गया तो जो लोग इस जिहाद के लिए वही लोग निकलेंगे जो हकीकत में सच्चे लोग हैं। और जिहाद से जो मुंह मोड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि दरअसल ये दुनिया में फसाद बर्पा करने वाले हैं। जो दुनिया में मुफसिदीन के ख़ात्मे के लिए न निकले तो दरअसल वो भी मुफसिदीन के साथ है। तो इस लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये मुफसिदीन का किला कुमा करना, ये दरअसल जुल्म और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा करना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जिहाद को फ़र्ज़ किया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक झिझोड़ने के अंदाज़ में कहा कि ये कुरान में क्या कभी गौर नहीं करते, इनके दिलों पर ताले लग गए हैं। कि बात असल में यह है कि सही राह जो है मालूम होने के बावजूद जो है अब ये हिदायत से मुंह मोड़ रहे हैं, ये दरअसल शैतान के फ़रेब में आ चुके हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इनकी इनके इन ये अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस दिन यही फरिश्ते जो है उनकी जान निकालेंगे और उनको घसीटते हुए जो है वह जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे। फिर जो आखिरी रुकू है अम हसिबल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, इस रुकू में बताया गया कि मुनाफिकीन इस धोखे में पड़े हैं कि उनका निफाक लोगों के इल्म से पोशीदा रहेगा। हालांकि ये गलत बात है। अल्लाह के निफाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इनको आया करके रहेगा दुनिया के सामने। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि मुनाफिकीन को पहचानना कोई दुश्वार बात नहीं, वो अपने तर्ज़ गुफ्तगू से पहचान लिए जा सकते हैं। जैसे आज के मुनाफिकीन आप उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ये बतलाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कि ये सुन्नत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माता है। हम ज़रूर आज़माइश में डालेंगे और हम देखेंगे कि कौन जो है मुजाहिद है, कौन साबित कदम रहने वाले हैं और कौन दरअसल जो है वो जो है दरअसल जो है मौत से राह फ़रार इख्तियार करने वाले हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र करने के बाद जो है इसमें जो दूसरी अक़वाम हैं उन्होंने जब कमज़ोरी दिखाई और उसका ज़िक्र है। और मुसलमानों को, अहले ईमान को ख़िताब करके कहा गया कि ए अहले ईमान, दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना है, सुलह की दरख्वास्त इनसे नहीं करनी है, तुम जो है गालिब रहोगे, तुम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो, उस पर तवक्कुल करो। ये दुनिया जो है ये कोई खेल तमाशा नहीं है। जो ईमान लाने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
से के अलावा उनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ बुख्ल से मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया है कि जो लोग बुख्ल से काम लेते हैं और जिहाद में अपने माल खर्च नहीं करते और सोचते हैं कि जिहाद में माल खर्च करेंगे तो हमारा माल कम होगा, तो दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये ऐसे लोग इंतज़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी कौम को उठाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे ये काम लेगा। इस पर ये सूरह जो है तमाम होती है। फिर हम देखते हैं सूरह फतह जो है, इसके बाद सूरह फतह है। इसका नाम जो है, इस सूरह की पहली जो आयत है जिसमें सुलह हुदैबिया को फ़तह कहा गया है, उस लफ्ज़ से में ये फ़तह इस्तेमाल हुआ, उससे इसका नाम है। इसमें 29 आयतें हैं, 4 रुकू हैं। नुज़ूल जो है ये हम सब जानते हैं, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुई, तो वापसी के वक्त ये सूरह नादिल हुई थी। इसमें इसके मज़ामीन में सूरह हुदैबिया जो थी, बज़ाहिर ये समझा जा रहा था कि मुसलमानों ने दब कर जो है सुलह कर ली है। सहाबा कराम को इस पर मलाल था, लेकिन बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत जो थी, उससे कभी सहाबा जो है दस्तबरदार तो हो नहीं सकते थे। वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर जो है सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। लेकिन बहरहाल एक गम था उनको, एक फितरी, एक कुदरती गम था जो और उसकी वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निगाहें थीं, अम्बियाई निगाह, इसके पीछे जो फतह थी उसको देख रही थी। इससे जो है सहाबा कराम गाफिल थे। इस सुलह को इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़तह मुबीन करार दिया और बाद की तारीख़ ने इसे साबित भी कर दिया कि इस सुलह के बाद इस्लाम के जो है दूर दराज तक जो है जिस तरह जो है फतह के गोशे खुले और 2.5 साल में जिस तरह पूरा पूरा मक्का जो है इस्लाम के उसमें आ गया, ये सब हम सब जानते हैं तारीख़ी लिहाज से। फिर इसमें जो देखेंगे तो सुलह हुदैबिया की जो उसको फ़तह करार देते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तक़बिल में भी मुसलमानों को फ़तह नुसरत की बशारत दी है। मोमिनीन को इसमें जन्नत की बशारत है, मुनाफ़िकीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत भेजी है, उनको गज़ब की खबर दी है और मुनाफ़िकीन के किरदार को भी अल्लाह ने थोड़ा बहुत इसमें ज़िक्र किया है। जो बैत रिज़वां थी, इसमें शरीक जो साहब कराम थे, उनके लिए यानी रज़ाए इलाही का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बशारत दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे राज़ी हो गया। इस सुलह की जो हिकमतें थी, जो मसलहतें थी, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद मसलहतों का जिक्र किया है, जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो थोड़ा सा तकलीफ़ में थे और जिनका इल्म सिर्फ खुदा को था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब था कि हम जो है इंशाअल्लाह जो है हरम में जो है उसका तवाफ़ कर रहे हैं, उसका जो है हज कर रहे हैं, तो उस ख्वाब का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें ज़िक्र किया है। अगरचे उसकी ताबीर जो थी वो जल्दी तो सामने नहीं आई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये ख्वाब सच होकर रहेगा। सहाबा कराम अलैहिस्सलाम को जो है चंद उनकी अज़मतों का बयान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वो कितने अज़ीम है, उनकी खुसूसियात यहाँ तक कि तौरात इंजील में भी ज़िक्र हुई है। अब हम देखते हैं तो पहला रुकू इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, इसमें जो है इस रुकू में सुलह हुदैबिया की जानिब इशारा है, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि आपको जो ये फ़तह अनायत हुई है, मोमिनीन के दिलों को इत्मीनान और तस्कीन होना चाहिए, उसमें किसी क़ल्क़ में, किसी गम में उनको नहीं आना चाहिए। आसमान और ज़मीन के जितने लश्कर हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, वो तमाम मोमिनीन के साथ हैं और साथ साथ मोमिनीन को जन्नत की बशारत दी है। मुनाफ़िक़ीन और मुशरिकीन पर अल्लाह का गज़ब, उसकी लानत हो, इसकी खबर दी है। फिर आखिर में इस रुकू में हम देखते हैं कि यानी एक मौके पर ऐसा आया, वो वाक़या यहाँ नहीं बयान कर सकते। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु सफ़ीर बनकर जब गए तो आने में जब ताख़ीर हुई तो लोगों ने ये अफ़वाह उड़ गई कि कुफ़ार ने उन्हें शहीद कर दिया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर तमाम सहाबा से बैत जिहाद ली। इस बैत का नाम कुरान की ज़बान में बैत रिज़वां है। इस रुकू में इस बैत के मुतालिक कहा गया कि मुसलमान जिस हाथ पर बैत कर रहे थे, ये दरअसल खुदा का हाथ था। रसूल की बैत जो होती है वो दरअसल उससे अहद शिकनी या अल्लाह से अहद शिकनी है। तो इसके बुरे अंजाम से अल्लाह ने बाखबर किया। फिर जो दूसरा रुकू है सयक़ूलु लकल मुखल्लफ़ून मिनल अराब, इस रुकू में बताया गया कि हुदैबिया में शिरकत न करने वाले जो मदीना में बहाने बनाकर रह गए थे, जब आप वापस जाएंगे तो बहुत अफसोस करेंगे। वो कहेंगे कि हम लोग कारोबारी आदमी हैं, घरेलू मसरूफियात थी और झूठे बहाने बनाएंगे। तो अल्लाह ने बाखबर किया कि ये दरअसल मुनाफिक हैं। अब मुसलमान जब लौट कर जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया कि अनकरीब अब खैबर जो है फ़तह होगा। तो जब खैबर फ़तह होगा, उस मुहिम के लिए जब आप निकलेंगे तो ये मुनाफिकीन सबसे आगे आकर आपसे इजाज़त तलब करेंगे कि हम अब जाएंगे, पिछला जो है कफ़ारा हम अदा करेंगे।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि यह दरअसल आपके लिए नहीं निकलना है, इनको मालूम है कि वहाँ माल गनीमत हमें बहुत मिलने वाली है, तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप जो है इनकी मादूरी को कबूल न कीजिए, बल्कि कहा गया कि इनको वहाँ इजाज़त न दीजिएगा। तो ये उसके बाद तीसरा जो रुकू है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिनुकुम, इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रुकू में बैत रिज़वान का तज़किरा करते हुए उसके जितने शुरका थे, जितने उसमें शरीक थे, उनसे अपनी रज़ा का ऐलान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। फिर कुछ मसलहतों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें किया है, ख़ास तौर से हमें मालूम है सीरत के हवाले से उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और अक्सर सहाबा इसरार कर रहे थे, उनके अंदर बिल्कुल बेचैनी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार कह रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्या बातिल पर हैं, हम क्यों सुलह कर रहे हैं, हम क्यों दब रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसकी हिकमतें थी, मसलहतें थी, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जानते थे, लेकिन अभी उसका इजहार जो है वो सारी मसलहतों का नहीं मुनासिब था, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। लेकिन उससे कमज़ोर जो मोमिन थे वो भी थोड़ा सा परेशान हाल थे, तो इस लिहाज से उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी एक मसलहत को यहाँ उजागर किया कि जो कमज़ोर किस्म के मुसलमान अभी ईमान को छुपाए हुए मक्का में हैं, अगर इन आपने चढ़ाई की इजाज़त दे दी गई जंग की, तो जब आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको मालूम नहीं कि ये मोमिन है, लेकिन अंदर से वो मोमिन है, तो हो सकता है जो है उनका भी कत्ल हो जाए। तो ये एक एक जो है मसलहत थी, जिसकी इसके अलावा बेशुमार मसलहतें थीं। फिर आखिरी जो रुकू है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक़, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब का तज़किरा है। जैसे मैंने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक बार ख्वाब देखा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम मुसलमान बेखौफ व ख़तर मक्का में दाखिल हो रहे हैं, हज और उम्रा अदा कर रहे हैं। तो इस रुकू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख्वाब का जिक्र करते हुए कहा गया कि ये ख्वाब सच्चा होकर रहेगा, और जो है मुसलमान इंशाअल्लाह इस साल तो नहीं, अगले साल मुसलमान जो है मक्का जाएंगे और उम्रा अदा करेंगे। फिर इसके बाद जो है फ़तेह मक्का के मौके पर जो मुसलमानों को बशारत दी गई कि आप पूरे शान व शौकत के साथ जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीम मक्का में दाखिल होंगे। फिर अगले उसमें हम देखते हैं कि सहाबा की कुछ तारीफ़ें हैं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। अब सूरह हुजरात में आते हैं। सूरह हुजरात, इसमें भी हुजरात हुजरा की जमा है, जिसके माने कमरा या गुरफे को बोलते हैं। इसमें चौथी जो आयत है उसी से ये नाम माखूज है। इसमें 18 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। इसका ज़माने नुज़ूल जो है वो मदनी सूरह है। रवायत से मालूम होता है कि ये सूरह 9 हिजरी में नादिल हुई, तो गोया बिल्कुल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आयत है। इसमें बेशुमार माशरती तालीमात हमें दी गई हैं, इसकी तफसील तो नहीं बयान हो सकती। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों की ताल्लुक़ की नौइयत कैसी होनी चाहिए, उसके मुतालिक चंद आदाब, जो आदाब रसालत, उसकी तालीम दी गई। फिर अफवाहों और हर कस नाकस की खबर पर जो है बिला तस्दीक और शहादत जो है एतबार कर लेना, उसके जो मफासिद होते हैं उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उजागर किया। मुसलमानों के आपस में किसी सबब से अगर कुछ जंग हो जाए, कुछ जो है दुश्मनी हो जाए, तो सुलह सफ़ाई उनको कैसे करानी चाहिए उसकी बात की गई है। फिर इस्लाह माशरत और हुस्न माशरत के सिलसिले में बहुत से अहम नुकात अल्लाह ने इसमें ज़िक्र किए हैं। आइए देखते हैं पहला जो रुकू है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाह। इस रुकू में अहले ईमान को जो है अल्लाह ने चंद नसीहतें की हैं, जैसे अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ा करो, न गुफ्तगू में, न चलने में। तो इससे ये बात पता चलती है कि कानून साजी का जो इख्तियार है वो सिर्फ अल्लाह और उसके नबी को है। हम और आप जो है बैठकर जो है कुरान और सुन्नत को बाला ताक रखकर कोई कानून नहीं बना सकते। उसी तरह ये भी बताया गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊँची न करो। फिर उसमें ये भी बताया कि कुछ लोग जो है वो जब दूसरों को बुलाते हैं तो उनको जो है उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से खिताब करते हैं। तो इस तरह जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो हो सकता है अल्लाह उनके अमाल को ज़ाय कर दे। कुछ जो है आराबी जो बेअक़ल होते हैं, कम पढ़े लिखे, उनका ज़िक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात से बाहर आकर जो है आवाज़ बुलंद करते हैं और कहते हैं कि यानी तो ये तालीम दी गई कि ये चीज़ बिल्कुल से ज़ेबा नहीं देती। फिर उसी तरह की बगैर तहकीक के हम जो है कोई चीज़ मान नहीं लें, उसके जो मुफसदात हैं, उसके जो नुकसानात हैं, उसको बताया गया है। और जो है कहा गया है कि इसमें जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई इक़दाम करें तो तमाम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर साथ साथ मुसलमान आपस में लड़ें तो हमें सुलह करानी चाहिए, उसकी मैंने जिक्र किया। फिर दूसरा जो रुकू है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, इसमें ये चीज़ को बताया गया कि जो माशरत, मुसलमानों का माशरा होगा वो किन उसूलों पर होगा। एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, एक दूसरे को ताना नहीं दिया जाएगा,
किसी को बुरे नाम और लक़ब से नहीं पुकारा जाएगा, किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ बदगुमानी नहीं होगी, मुसलमानों के ऐब मालूम करने के लिए किसी की टोह में नहीं रहेंगे, किसी की एक दूसरे की गीबत नहीं करेंगे, बल्कि गीबत की मिसाल दी गई कि मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो उसी तरह जो है ये ज़ाती जो जो नाम है और कबाइल, ये तो तारुफ़ के लिए हैं, असल अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त जो है तक़वे की बुनियाद पर है। और आखिर में फरमाया गया कि अल्लाह पर ईमान एहसान जो है ये इसमें ईमान की दौलत से फिर सूरह क़ाफ़ हम देखते हैं कि इसमें सूरह क़ाफ़ से ये भी है कि एक छठा ग्रुप जो है शुरू हो रहा है। तो उस छठे ग्रुप में हम सब जानते हैं कि इसमें कुल 17 सूरतें हैं। उसमें सूरह क़ाफ़ से लेकर वाक़िया तक ये मक्की सूरतें हैं। रहमान के बारे में थोड़ा इख्तलाफ है कि ये मदनी है कि मक्की है, लेकिन आगे की फिर 10 सूरतें हदीद से लेकर तहरीम तक ये मदनी है। इस ग्रुप का जो मरकज़ी मौजू है वो क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उठाएगा अपने यहाँ हिसाब किताब के लिए, ये बुनियादी मौजू है। लेकिन और भी मौज़ूआत इसमें तौहीद के, रसालत के, आखिरत के आएंगे, लेकिन ये सब इसी मरकज़ी मौजू के तहत जो है देखेंगे। इसमें ख़ास तौर से इस ग्रुप में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर जोर दिया गया है कि जो इज्तिमाइयत होगी वो कैसे जो है एक मजबूत इज्तिमाइयत होती है। इसके मज़ामीन में हम देखते हैं कि मुनकिरीन के जो शुकूक व शुबहात थे उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरदीद की है और उनको जो है दलाइल दिए हैं और कहा गया है कि जो वो शुबहात हैं उनकी कोई अक़ली दलील नहीं है। फिर उसके साथ साथ जो कहा गया कि जो अल्लाह की अताअत से जो है वो मुँह मोड़ते हैं, दरअसल वो इसलिए मुँह मोड़ते हैं कि वो क़यामत के मुनकिर हैं। तो इसके मुकाबले में मोमिनीन को कहा गया कि आप सब्र के साथ, पूरे सबात कदमी के साथ जो है अपने मिशन को जारी रखिए और अल्लाह की हम्द व बयान कीजिए। पहला जो रुकू है वो काफ़ अल कुरानिल मजीद बल अजबु अन जाहुम, इसमें हम देखते हैं कि इस रुकू में पहले तो मुनकिरीन हक़ को उस ताज्जुब का तज़किरा किया है जो वो किया करते थे कि इंसान कैसे रसूल हो सकता है। तो उनको इस ताज्जुब को ज़िक्र करने के बाद कहा गया है कि मरने के बाद जो है भला किस तरह ज़िंदा किए जाएंगे, ये भी वो सवाल करते थे। तो इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें जवाब दिया है। फिर सामिन व सामियात जो है दूसरा जो रुकू है वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल ग़ैब है, वो जो इंसान की सहरग है उससे भी ज़्यादा इंसान के करीब है, जो वसाविस उनके दिलों में उठते हैं उससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकिफ़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक एक चीज़ रिकॉर्ड है, वो रोज़ क़यामत सबको जो है अया कर देगा। और फिर जो शख्स जो है शैतान के पीछे चले थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कहे फरिश्ते उनको हाँक कर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, और जो लोग जो है अपनी ख्वाहिशात से रुक कर जो है इस नबी की बात माने होंगे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजेगा। फिर जो है जहन्नम का जिक्र किया है तीसरी रुकू में कि जहन्नम पूछेगी कि क्या कुछ और तुमको चाहिए, तो वो कहेगी कुछ और हैं तो दीजिए। तो ये इस तरह जो है एक तरीके से वईद देकर कहा गया है कि तुम जो है ये इबरत का मौका है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मोहलत दी है, तुमको संभलना है तो संभल जाओ, और मोमिनीन को तस्बीह की जो है बसारत दी गई है। सामीन व सामियात, अब इसके बाद जो है जो इस पारे की आखिरी जो सूरह है वो सूरह दारियात है। इस सूरह का नाम जो है दारियात उड़ाने वाली हवाओं को कहते हैं। पहली जो आयत है उसका ज़िक्र उसमें है, उस वजह से सूरह का नाम सूरह दारियात है। इसमें 3 रुकू हैं और 60 आयतें हैं। ज़मान नुज़ूल जो है ये मक्की सूरह है, बिल्कुल इब्तदाई दौर में ये नादिल हुई है। इसमें जो मज़ामीन बयान हुए हैं वो क़यामत के वाक़े होने पर कायनात के जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिर हैं उसकी शहादत है, और साथ साथ जो है क़यामत के अंदेशे से बेफ़िक्री का जो सबब ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया है। फिर इसके मज़ामीन में ख़ास तौर से ख्वाहिशात नफ्स पर अमल दारी, माल व दौलत के होते हुए जो है ज़्यादा होती है, इसलिए माल दौलत के बारे में जो इस्लाम का जो नज़रिया है उसकी तालीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। फिर कायनात और निज़ाम कायनात के ज़रिए जो है तौहीद का सबक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। सोसाइटी में जो बेहयाइयों के खौफनाक जो नतायज हैं के निशानात होते हैं, तारीख़ी लिहाज से ख़ास तौर से कौम लूत का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बतलाया है। दुनियावी आराइशों पर जो इतराते हैं और हक़ से एराज़ करने उसके ख़तरनाक नताइज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाह किया है। इसीलिए कौम फ़िरऔन, कौम आद, कौम सबूत, कौम नूह का बतौर तारीख़ी यहाँ पर ज़िक्र किया है। फिर साथ साथ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुसलमानों को दावत दी गई है, और कहा गया है कि जो लोग दावत दीन में लगे हैं, मुखालफिन की इज़ा रिसानियों पर सब्र कर रहे हैं,
یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ اس کی صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ انسان اور جنات کی پیدائش کی جو اصل غرض و غایت ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا تذکرہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو رکوع ہے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، اس میں اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بتایا کہ ہواؤں کا چلنا، ان سے جو بارش کا برسنا، اس چیز میں جو ہے قیامت کی نشانی ہے، اور تمہیں جو ہے خوف دلایا جا رہا ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے، اعمال کی جو جزا و سزا ہے یہ ضرور پیش ہونا ہے، یہ کسی تخمینے پر یا قیاس آرائی پر نہیں ہے، اور یہ جو ہے اپنی عقل سے جو ہے ہمیں پڑھ کر جو ہے آخرت کو بھول جانا، یہ ایک دن جو ہے تمہارے پچھتاوے کا باعث ہوگا۔ اور جو ہے بتایا گیا ہے کہ اس روز یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی سامنے آ جائے گی جب یہ اپنے کیے ہوئے پر پچھتائیں گے۔ پھر اس کے برخلاف جو لوگ جو ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے انعامات کے ایسے لوگ جو ہے مستحق ہوں گے۔ ان کی صفات اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، وہ سحر کے وقت توبہ و استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے مال میں مانگنے اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کچھ یقین کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمین میں اور خود تمہارے وجود میں اگر تم یقین کرنا چاہو تو نشانیاں موجود ہیں۔ تو آسمانوں میں تمہارا رزق موجود ہے، اسی لیے آسمانوں اور زمین کی رب کی قسم کھائی گئی ہے کہ یہ آخرت کے باحق ہونے کی دلیل ہے، اور ایسے ہی یقینی ہے جیسے تم آج بول رہے ہو۔ پھر اگلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 2، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اس رکوع میں فرشتوں کی اس جماعت کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے بشارت لے کر آئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام، لوط کے قوم کی طرف جو ہے لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے ان کو سزا سنانے کی وعید لے کر آئے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کا کیسا جو ہے نمونہ پیش کیا، کھانے پینے کا جو ہے سامان فراہم کیا، تو اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ 2 رکوع جو ہے اس پارے میں ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع جو ہے اگلے پارے میں ہے۔ میں اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ کرنے والا بنائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان میں جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنا تعلق قرآن سے وابستہ کریں۔ یقیناً ہماری زندگی، ہماری کامیابی اسی قرآن میں مضمر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن والا بنائے، ہمیں قرآن کا مدارسہ کرنے اور قرآن کو سمجھنے، اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔